Hi guys, welcome to Ufye Padhai. I'm Lavanya and today I'll teach you modal verbs in German. So before we start discussing how to use modal verbs, let's first focus on the meanings of modal verbs and their conjugation. So there are total 7 modal verbs in German. Mögen, möchten, wollen, sollen, können, müssen and dürfen. So starting with mögen, mögen means to like. Very simple. When you like something or someone. Ich mag, du magst, sie es mag, ihr mögt, wir sie. Here I've written combined. Wir means we. Sie, this one is for they, and this capital SZ is for formal you. Conjugation is mögen. So you must have noticed one thing that for ish and airs, the conjugation is same. So that's the first rule. In all the modal verbs, the conjugation of ish airs is always same. Okay? Now möchten. Möchten means would like to. It means a preference. Very simple. See, mögen and möchten, you can say both are alike because mögen means to like, which is also, indicating a preference only. When I say I like to eat ice creams, that means I prefer to eat ice creams over something else, right? So möchten is would like to, it's a more polite way to talk. So whenever you ask for something, for example, I would like to drink tea. So that's a more polite version. Möchten, ich möchte, du möchtest, sie es möchte, same. Ihr möchtet, sie möchten. Now wollen. Wollen means to want. Now normally people tend to get confused between möchten and wollen. See, first of all, möchten is a more polite version. Secondly, möchten doesn't indicate a surety. For example, when we talk about wollen, wollen means to want a strong desire. Like, I want to go to Germany or I want to study German. So that's a strong desire that you will for sure do that. You will for sure buy, suppose, a bag, eat an ice cream, anything like that. So when there's a lot of emphasis, a lot of surety, or a very strong desire to do something, for example, if a person says, I want to become a pilot when I grow up, so that is when wollen comes. Möchten, on the other hand, is not showing a surety. For example, I would like to eat ice cream. So it's not about surety over here. I can eat an ice cream or maybe I can eat something else also. So that's the basic difference between möchten and wollen. But one thing to keep in mind, möchten is always considered a very polite version to talk. So instead of saying, I want to do this or I want to eat ice cream, ich will Eis essen. Instead of that, you can say, ich möchte Eis essen. I would like to eat ice cream. But I hope the difference is very clear. Wollen is a very strong indicator of it that you really want to eat or want to do whatever, but it's showing a lot of surety. That's why I've written it's a strong desire. Because see, möchten and wollen दोनों ही चाहत बता रहे हैं, आपकी preference ही बता रहे हैं एक तरह से. If you compare these three, mögen, möchten, wollen, they are basically indicating the same thing only. कि मैं ये पसंद करता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये चाहिए. Are you getting it? All three of them are actually having overlapping meanings. काफी similar meanings ही हैं. But what's the basic difference? कि जब हम बोलते हैं तो म्योशन ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि पोलाइट और रिस्पेक्टफुल लगता है. वॉलन अगर आप यूज करो तो इसका मतलब आप बहुत श्योर और सच्ची में चाहते हो. जैसे अगर कोई कहता है कि मुझे मास्टर्स जर्मनी में करना ही करना है, तो वहां पे श्योरिटी जब है तो वहां पे वॉलन यूज हो सकता है. अगर कोई पर्सन म्योशन का यूज करे उस सेंटेंस में तो इसका मतलब या तो मतलब इतना वो श्योर नहीं है, शायद वो मास्टर्स कहीं और से भी करे, शायद ना भी करे मास्टर्स, बट इतनी कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो पक्का ही जर्मनी से करेगा. ओके. Sollen मीन्स शुड एंड ये नॉर्मली कब यूज होता है? एडवाइस को लेके, जब हम किसी को कुछ एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं. देन क्योनन मीन्स कैन. नाउ कैन का क्या मतलब है? वो इंग्लिश वाला कैन ही है, वो जूस पीने वाला कैन नहीं, वर्ब वाला कैन है ये. एंड इट रेफर्स टू एन एबिलिटी, मतलब आप कुछ करने के काबिल जब होते हो.
For example, I can teach German, I can speak, I can write poems, I can write stories. तो ये क्या है, ये आपकी कैपेबिलिटी के बारे में बता रहा है कि आप ये काम कर सकते हो. So that's what Kyonan is. Now focusing on the conjugations also. Ich will, du willst, er sie es will. तो अब ये एकदम ही डिफरेंट है. ये इंग्लिश वाले विल से कंफ्यूज नहीं होना है हमें. Ihr wollt, wir sie wollen. Ich soll, du sollst, er sie es soll. Ihr sollt, wir sie sollen. Kyonan, see now the conjugation, absolutely different. Ich kann, du kannst, er sie es kann, ihr könnt, wir sie können. Now müssen. Müssen means the same as English must. But what does this indicate? एक compulsion, कुछ mandatory है. जैसे you must study for the exam. अगर आपको कल एग्जाम है तो आपको मैं बोलूंगी या तो यू शुड स्टडी ऑल्सो फॉर द एग्जाम. क्या आपको एक एडवाइस दे रही हूँ मैं कि आपको कल एग्जाम है तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए, एक एडवाइस है. या फिर आपको करनी चाहिए लाइक एक फोर्स के साथ जब बोल रही हूँ, कंपल्शन में. जैसे अगर आपकी मम्मी आपको डांट रही हो कि आपको पढ़ाई करनी ही करनी है, तो उसमें थोड़ा गुस्सा होता है, थोड़ा फोर्स, कंपल्शन जब होता है तब होता है म्यूसन. Ich muss, du musst, er sie es muss, ihr müsst, wir sie müssen. Now the last one, dürfen. Very easy. dürfen का मतलब क्या होता है? To allow. अब जब भी हम किसी को कुछ अलाउ कर रहे हैं काम करने को या नहीं करने को, तो बेसिकली उसमें क्या हो रहा है, हम एक परमिशन ही दे रहे हैं एक तरह से. You are allowed to eat junk food, you are not allowed to eat junk food, you are allowed to use your phones in school. वैसे होता तो है नहीं कभी. तो आप देख रहे हो यहाँ पे अलाउ वर्ड कहाँ पे आ रहा है, जब कुछ परमिशन रिलेटेड बात हो. Ich darf, du darfst, er sie es darf, ihr dürft, wir sie dürfen. तो आपने देखा होगा कि wollen, können एंड dürfen इसकी कॉन्जुगेशन बहुत डिफरेंट है. तो ये आपको थोड़ा याद करना होगा. बट इजी पार्ट क्या है कि आपको इश एज इसकी कॉन्जुगेशन एकदम सेम है. सो आई होप द मीनिंग इज क्लियर. कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. सेम कंफ्यूजन नॉर्मली म्योगन म्योशन वॉलन को लेकर ही थोड़ी आती है. वो मैंने आपको इजीली बता दिया कि क्या फर्क है. क्यों क्या है, एबिलिटी क्या है, कुछ भी आप काम कर सकते हो, कुछ भी केपेबल करने को, आप काबिल हो किसी चीज को करने को, एनीथिंग. तो वहां आते क्यों. तो ऐसा कुछ नहीं होता कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको एक पर्टिकुलर वर्ब ही फिट करने, नहीं, मल्टीपल वर्ब्स भी आ सकती है कि आई मस्ट स्टडी फॉर द एग्जाम, मतलब मुझे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी एग्जाम के लिए. तो यहाँ पे थोड़ा मैं खुद को ही फोर्सफुली कह रही हूँ कि नहीं, मुझे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी. आई शुड स्टडी फॉर एग्जाम, मुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए एग्जाम के लिए. तो ये मैं खुद को ही सलाह दे रही हूँ, या मैं आपको भी कह सकती हूँ कि आप यू शुड स्टडी फॉर द एग्जाम. तो मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ. अब बात मानना ना मानना तो आपकी मर्जी है, बट ये एक एडवाइस है. बट यू मस्ट स्टडी फॉर द एग्जाम, तो ये थोड़ा क्या है, फोर्सफुल है, कंपल्शन आपको दिखा रहे हैं आप पे. एंड यू कैन स्टडी फॉर द एग्जाम, तो मतलब आप ये कर सकते हो, आप पढ़ाई कर सकते हो एग्जाम के लिए. आई होप द डिफरेंस इज क्लियर, right? Now I'll write the examples over here so that you understand how to use modal verbs in a sentence. Now let's have a look at the structure. See, when we use a modal verb in a sentence, the modal verb will come at the second position in the conjugated form. And the verb that we're using along with the modal verb in the sentence will come at the last position in the infinitive form. Infinitive form means the verb will come as it is without being conjugated. So जब modal verb use होता है तो उस sentence में सिर्फ और सिर्फ modal verb ही conjugate होता है, बाकी verbs conjugate नहीं होती है. For example, मैंने यहाँ पे example लिखा नहीं है, बट मैं ऐसे यहाँ पे बना रही हूँ इस वक्त कि ich möchte tanzen und singen. That means I would like to dance and sing. तो यहाँ पे मैंने दो verbs use करे, tanzen and singen. So that has come at the end. Ich möchte tanzen und singen. So I would like to dance and sing. तो ये दो वर्ब्स जो आ रही मेरी infinitive form में आ रही है at the end.
एयर माग आइस, अब मैंने यहाँ पे एसन जो है ब्रैकेट्स में लिखा है, इट मीन्स दैट इट इज ऑप्शनल टू यूज दिस वर्ब। व्हाई? बिकॉज आपका मीनिंग जो है वो कन्वे हो रहा है। ही लाइक्स आइसक्रीम, तो नेचुरली उसे आइसक्रीम खाना ही पसंद है। सो विद म्योगन यू कैन अवॉइड यूजिंग द अदर वर्ब, बट इवन इफ यू यूज इट, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स करेक्ट ओनली। He likes ice cream or he likes to eat ice cream. Same. Sie möchte ein Bett kaufen. She would like to buy a bed. Es muss groß sein. This S refers to what? Bed. That's bed, right? So now what's the sentence? That she would like to buy a bed, but what's the condition? S muss मतलब बेड जो है आपका वो बड़ा होना ही चाहिए, एक कंपल्शन है। क्योंकि अगर बेड बड़ा नहीं हुआ तो क्या पता वो शायद वो नहीं खरीदेंगे, तभी म्यूसन यूज हुआ है। Du willst nach Deutschland fahren. You want to travel to Germany. मतलब जो आप किसी से पर्सन से बात करो, आपका दोस्त हो सकता है, तो इसका मतलब वो जाना चाहता है जर्मनी, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है उसकी। Wir sollen jeden Tag Wortschatz lernen. Wir हम सबको डेली क्या याद करना चाहिए? वोकैबुलरी। वैसे तो करना ही चाहिए, क्योंकि आप जर्मन याद कर रहे हो, डेली याद तो करना ही चाहिए आपको। तो यहाँ पे जॉर्डन क्या आ रहा है कि एडवाइस के सेंस में आ रहा है कि हम सब, जैसे अगर हम ग्रुप में बैठे हो तो हम सबको डेली रिवाइज करनी चाहिए वोकैबुलरी। इश कान डॉइच, अब क्योनन वर्ब के साथ जब भी आप कोई लैंग्वेज यूज करते हो ना, तो उसके साथ नीड नहीं होती कोई और वर्ब यूज करने की। फॉर एग्जाम्पल इश कान डॉइच, इश कान स्पेनिश, इसका मतलब क्या है कि आई कैन स्पीक दैट लैंग्वेज वेरी फ्लुएंटली, ये मीनिंग अंडरस्टैंड होता है, तो इसमें वर्ब यूज करने की नीड नहीं होती है। इश कान डॉइच मतलब मैं जर्मन में बात कर सकती हूँ, मुझे जर्मन आती है। तो डायरेक्टली ट्रांसलेट करना है इश कान डॉइच स्प्रेशन, देखो गलत तो नहीं है क्योंकि ग्रामेटिकली तो रूल सही जा रहा है, बट जर्मन मोस्ट कॉमनली क्या बोलते हैं, क्या प्रेफर करते हैं बोलना, खाली लैंग्वेज का नाम। तो ये सिर्फ क्योलन की बात नहीं हो रही है, ये क्योलन के साथ जब आप कोई लैंग्वेज यूज करते हो तब की बात हो रही है। इश्कान इंग्लिश, इश्कान इंग्लिश प्रेशन नॉर्मल इतना नहीं हो बोलते, क्योंकि इश्कान इंग्लिश से ही मीनिंग कन्वे हो जाता है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, लिख सकते हो। So ich kann Deutsch, ich kann Spanisch, Englisch und so weiter. Now ich kann kochen. It means I can cook. ये मेरी एबिलिटी की बात है कि मैं कुकिंग कर सकती हूँ। I can, मैं कुछ कर सकती हूँ। क्या यहाँ पे kochen है, कुकिंग कर सकती हूँ। Ihr müsst eure Hausaufgaben machen. तो ये एक तरह से एक टीचर ही बोल रही है कि आप सबको अपना होमवर्क करना है, मतलब करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। Sie dürfen nicht rauchen. अब ये जो जी है, अब आप यहाँ से देखो, ये जी या तो ये दे वाला भी हो सकता है या फॉर्मल यू वाला भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। अगर सपोज कोई पैराग्राफ लिखा होता तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें समझ में आ जाता कि ये जो जी है ये फॉर्मल यू वाला है या फिर ये दे वाला है। तो यहाँ पे आप इसको दोनों ही कंसिडर कर सकते हो, दोनों, कुछ गलत नहीं है इसमें, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल, एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, कोई पैराग्राफ नहीं है, कोई कहीं से कोरिलेट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे जब मैंने एस मस्ट ग्रो साइन लिखा है, तो ये एस किसको रेफर कर रहा है? बेड को। तो जी ड्यूफिनिशन मतलब यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक और दे आर नॉट अलाउड टू स्मोक, तो उनके पास परमिशन ही नहीं है क्या, स्मोकिंग करने की। तो ड्यूफिन इज ऑलवेज अबाउट व्हाट, परमिशन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मोडाल वर्ब्स, इट्स वेरी इजी। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका मोडाल वर्ब सेकंड पोजीशन पे आता है, एंड जो भी वर्ब आप यूज कर रहे हो वो लास्ट में जाएगी विदाउट कॉन्जुगेशन की। बच्चे कहीं में यही गलती कर देते हैं कि वो मोडाल वर्ब के साथ जो दूसरी वर्ब भी होती है वो कहीं बीच में लिख देते हैं, दैट्स रॉन्ग। तो आपको रूल का क्या ध्यान रखना है, modal verb at the second position and the verb in the infinitive form at the last position without being conjugated, क्योंकि infinitive form का मतलब ही क्या है कि verb as it is ही आ रही है, conjugate होके नहीं आ रही है। तो अब आपको क्या करना है, modal verb के conjugation को थोड़ा रिवाइज करना होगा, लिख के याद करना होगा, एंड सेंटेंसेस फ्रेम भी करने हैं। आप इन सेंटेंसेस को भी नोट कीजिए एंड खुद भी फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। Let me know in the comments how you found this topic. Easy है ना? है easy, ये तो पढ़ाई कर लो अब। चलो, thank you so much for watching to the end. Please subscribe to my channel, like and share my videos. See you in the next lesson. Bye bye.